أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا اس دن کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کی سنتوں پہ کو ہماری زندگی میں لانے والے بنیں۔ تو الحمدللہ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ مکہ کس طرح سے فتح ہوا کر کے، جب قریش لوگ کے جو کسی ایک پارٹی نے کیا کیے تھے، ان لوگ نے عہد کو توڑ دیے تھے، وہ عہد ان لوگ نے توڑ دیے تھے اور قریش لوگ نے کیا کیے تھے، ان کا ساتھ بھی دیے تھے۔ تو اب ان لوگ نے غلطی کر دیے، لیکن اب کیا کرے، وہ غلطی تو ہو گئی۔ اب وہاں پہ ان لوگ کو ڈیمانڈز بھی دی گئی تھی، یا تو تم کیا کرو، پیسے دو جو تم نے قتل کیے اس کا، یا اور بنو بکر کے ساتھ تمہاری دوستی ختم کرو، یا تو سمجھو کہ یہ جو ٹروس ہے، جو ہمارا جو حدیبیہ کی صلح ہے، حدیبیہ کی جو یہ ہے ٹریٹی، وہ ختم ہو جائے گی کر کے۔ تو ان لوگ نے پہلے دونوں کا تو کام نہیں کیے، لیکن یہ جو ٹریٹی کے لیے وہ بہت کوشش کی کہ ٹریٹی قائم رہے، اور کر کے ابو سفیان جو ہے وہ آئے تھے، مدینہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے وہ پہنچے اپنی بیٹی کے پاس، لیکن ان کی بیٹی نے بھی کیا کیا، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ان کی بیٹی نے اپنے ابا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ تک بیٹھنے کے لیے نہیں دیے، تو اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی کہنے کے بجائے وہ وہاں سے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے پاس انہوں نے کوشش کی ہے، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن یہ سارے لوگ نے صاف صاف منع کر دیے کہ ہم آپ کی سفارش نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ بنا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے واپس پلٹ کے چلے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، تیاری کر دی، کیونکہ ان لوگ نے جو ٹریٹی توڑے تھے تو اس کیس میں کیا کرنا تھا، اور وہاں کی جس قبیلے کے ساتھ ان لوگ نے یہ کیے تھے، غلط کام کیے تھے، جا کے ان لوگوں کا قتل کیے تھے، تو اس قبیلے کا سردار آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اب آپ کیا کیجیے، ہماری مدد کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کر دیا کہ ہم ضرور کیا کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کا ہم لوگ بدلہ ضرور لیں گے۔ اب ابو سفیان واپس آ گئے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اب جو ہے مسلمان ان لوگ پلٹ کے ضرور وار کریں گے۔ انہوں نے پوری کوشش کرے کہ واپس سے جو ہمارا ٹریٹی ہے، جو عہد ہے، وہ واپس سے برقرار رہے، لیکن وہاں پہ مسلمان لوگ جو تھے، ان کے جو سردار لوگ تھے، انہوں نے کسی نے بھی ابو سفیان کی بات نہیں سنی۔ تو ابو سفیان اور اس کے جیسے جو سردار تھے سمجھدار، وہ ان لوگ کیا کر رہے تھے، وہ ان لوگ دیکھ ہی رہے تھے کہ ابھی مسلمان لوگ کیا کام کریں گے، ان لوگ کی نیکسٹ کیا چال ہوئی گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، کچھ لوگوں کو، کچھ اپنے صحابہ کو تیار کرے، اور انہوں نے مکہ کی طرف نہیں بھیجے، انہوں نے دوسری جگہ پہ بھیجے، تھوڑے سے 8 لوگوں کو۔ تو سب لوگ کو خبر کیا پہنچی کہ اب ان لوگ فی الوقت تو مکہ کی طرف چڑھائی نہیں کر رہے، کوئی دوسری جگہ پہ ان لوگ جا رہے، دوسری جگہ پہ لڑنے کے لیے جا رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، اپنے پورے صحابہ کو لے کے گئے، اور جب وہ جگہ پر پہنچے تو انہوں نے بتا دی کہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں، وہ مکہ پر چڑھائی کرنے والے، ورنہ اس سے پہلے تک یہ بات کیا تھی، بہت سیکریٹ رکھی گئی تھی۔ تو اب ہے نا، اس میں سے جو ایک صحابی تھے، انہوں نے کیا کیے، جب ان کو پتا چل گیا کہ اب مکہ کی طرف ہے نا چڑھائی ہونے والی ہے، جن کا نام حاتب تھا، تو انہوں نے کیا کیے، ایک خط لکھ کے کیسے بھی مکہ کے سرداروں کو پہنچا دو کر کے وہ خط لکھ کے بھیج دیے۔
अब ये खत की खबर वही के ज़रिए नबी वसल्लम को पहुँच गई कि एक जो खत है ना मक्का की तरफ पहुँचाया गया है, जिसमें मक्का वालों को आगाह कर दिया जा रहा है कि मदीना से लोग आएँगे और उनको उन पे अटैक करने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु को और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजे कि जाओ जाके वो एक औरत गई हुई है, उसके पास से खत है मिलेगा वो हासिल करके ला लो। अगर वो खत दे दे तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं दी और उससे तुमको खत नहीं मिला तो तुम क्या करना उसका कत्ल कर देना करके। तो इसी तरह से जब वो हज़रत अली उन लोग पहुँचे तो सबसे पहले तो वो औरत ने मना कर दी, लेकिन फिर आखिर में जब उसको जान की धमकी दी गई, तो फिर उस औरत ने वो खत दे दी। अब नबी सल्लम ने उस सहाबा को बुलाए जिन्होंने ये किए थे, खत लिखे थे। तो वो सहाबा जब उनके सामने पेश हुए तो बताया उनसे पूछा गया कि तुमने इतना बड़ा गलत काम क्यों करे? क्यों तुमने आगाह कर दिए दुश्मनों को कि हम लोग आने वाले? तो उन्होंने बोले कि देखो जो है ना मक्का में मेरी फैमिली रहती है और मुझे मेरी फैमिली का डर था और मैं वहाँ का है ना वहाँ का मेरे मेरे ताल्लुक है ना वहाँ पे किसी भी बड़े घराने से नहीं है। मैं मक्का का नहीं हूँ, मैं बाहर से आके बसा था, लेकिन मेरा वहाँ पे कोई भी बड़े घराने से ताल्लुक नहीं है। अगर आप लोग जब मक्का पे अटैक करेंगे तो कोई-कोई लोग अपने बड़े-बड़े खानदान की दुहाई देंगे और मदीना के जो कुछ बड़े-बड़े लोग हैं वो उनसे ये रहेगा तो उस दुहाई से वहाँ के लोग तो थोड़े बहुत तो बच जाएँगे, लेकिन मेरे खानदान का कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो इसलिए मैंने ये खत लिख के भेजा कि ताकि क्या है जो मक्का वाले के मक्के के जो बड़े सरदार हैं, उन लोग का क्या कर रहे मेरे पे एहसान रहे तो उन लोग क्या करें मेरे फैमिली वालों के साथ अच्छे से सुलूक करें करके। तो नबी सल्लम ने बोले अच्छा ये तुम है ना सही जवाब दिए करके। अब वहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बोले कि मैं है ना ये मुझे इजाज़त दो मैं ये शख्स का क्या करता हूँ सर कलम कर देता हूँ। क्योंकि इसने जो थे बहुत बड़ी गलती किए थे। तो उस पर नबी सल्लम ने बोले कि नहीं ये है ना बदरी सहाबी है। ये जो सहाबी थे हातिब वो बदर में शामिल हुए थे। तो ये बदरी सहाबी है और अल्लाह सुब्हान तआला ने बोले हैं कि बदरी सहाबियों के लिए हर चीज़ माफ़ है। तो इसके लिए तुम इनको कत्ल नहीं कर दो, इनका मामला अल्लाह के साथ है। हो सकता है अल्लाह इनको माफ़ी दे दिए हो करके। तो फिर हज़रत उमर भी ठहर गए कि बोले अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज़्यादा जानते हैं करके। अब मुसलमान लोग जो थे वो मक्का की तरफ कूच करने लगे। तो रास्ते में ही है ना नबी सल्लम को उनके जो चाचा थे अब्बास, वो है ना मदीने से निकल चुके थे अपनी फैमिली के साथ। वो मक्का की तरफ आ रहे थे। तो उनसे और वो पहले से ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लम को वहाँ पर मिल गए। और थोड़ा उन लोग आगे निकले तो वहाँ पे उनके नबी सल्लम के और 2 भाई जो थे, कज़िन भाई, अबू सुफियान बिन अल हारिथ और अब्दुल्ला बिन उमैया। अब ये जो दोनों थे, ये क्या किया करते थे, ये नबी वसल्लम को बहुत सताया करते थे। तो लेकिन अब इन लोग को भी समझ में आने लग गया क्या, कि अभी नबी वसल्लम के बारे में उनको समझ में आने लग गया था कि आहिस्ते-आहिस्ते अभी क्या होने वाला है, मक्का में भी इनकी हुकूमत होने वाली, इनका ही यहाँ होने वाला है। तो इन लोग अभी ना माफ़ी माँगना चाहते थे। तो लेकिन इनको कोई भी ये नहीं दे रहा था, शह नहीं दे रहा था। आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, उन्होंने बोले कि अच्छी बात है, आप जाओ नबी वसल्लम के पास और नबी वसल्लम के पास जब आप सामने जाओगे, हाज़िर होगे तो उनसे ये बात कहना कि अल्लाह ने आपको क्या की है, हम पे फ़ज़ीलत दी है, जैसे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बोले थे, उस तरह से बात करना। तो उसी तरह से उन्होंने बात की है, तो नबी वसल्लम ने भी उसी तरह से जवाब दिए, जो उन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिए थे, कि आज तुम पे कोई भी ये नहीं रखूँगा, तुमको भी मैं माफ़ करता हूँ, तुम्हारे लिए भी मग़फ़िरत है करके। और फिर उसके बाद जो है अबू सुफियान जो है और ये जो मक्का के सरदार है ये वो अबू सुफियान है, अबू सुफियान बिन हारिथ। तो ये अब ये मक्का के पहुंच गए, पूरे मुसलमान लोग पहुंच गए एकदम मक्का की सिटी के आउटस्कर्ट पे और रात के वक्त पहुंचे थे। तो अब नबी वसल्लम ने क्या बोले कि अभी तुम लोग है ना आग जला सकते हो, आग जला लो क्योंकि रात का वक्त है, अगर खाना वाना बनाना है या जो भी है कैंप डाले है तो आग जलाना है, आग जला लो। तो ये सारे सोल्जर्स ने करीबन 10,000 के जो सोल्जर्स थे उन लोगों ने आग जलाए। तो मक्का वालों को पूरे से अच्छे से खबर मिल गई कि अब मक्का के बाहर इन लोग सारे इतने 10,000 की तादाद में सोल्जर्स खड़े हैं मक्का पे अटैक करने के लिए। अब जो अबू सुफियान जो उनका जो सरदार था वो
अपने वो है और हाकिम बिन हिजाम ये सब है ना, सब देख रहे कि मक्का पर इन लोग पहाड़ पे चढ़ के देख रहे कि पूरे मक्का को घेर के यहाँ पे कैंप लगा के बैठे हैं करके। फिर उसके बाद अबू सुफियान जो है वो गए नबी वसल्लम से मिलने के लिए, और उनको कौन लेके गए? सबसे पहले वो किससे मिले? हजरत अब्बास से मिले। उनको रास्ते में हजरत अब्बास मिल गए, और हजरत अब्बास उनको क्या करे, सही सलामत लेके गए, क्योंकि अब ये जो है ये दुश्मन के सरदार है, तो ऐसे डायरेक्ट तो जाके मिल नहीं सकते। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ने अपनी पनाह में उनको लेके गए। तो जब वो हजरत नबी वसल्लम के सामने शामिल हुए, तो नबी वसल्लम ने उनको देखे कि और बोले कि अभी भी तुमको और कितना वक्त लगेगा गवाह शहादत कबूल करने के लिए। तो जब ये बात सुने उन्होंने नबी वसल्लम से, तो उसके बाद उन्होंने क्या किए, उन्होंने भी शहादत ले लिए और कलमा पढ़ लिए। फिर वहाँ पे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु थे, तो उन्होंने क्या बोले कि जो अबू सुफियान है, जो सरदार है, तो उनको कुछ अच्छा आप दे दीजिए। तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि इनको है ना, मैं ये देता हूँ कि जो जाके अभी वो मक्का में ऐलान करना कि जो भी मक्का में है, अबू सुफियान के घर पे है, शर उनको अता फरमाता हूँ कि जो भी मक्का में अबू सुफियान के घर पे है, तो जब मुसलमान लोग अटैक करेंगे, तो वो कैसे है, वो हिफाज़त में है। फिर उसके बाद नबी वसल्लम ने बोले, जो भी अपने घर के अंदर है और अटैक नहीं करेगा, तो वो भी हिफाज़त है, और जो भी खाने काबा के अंदर है, तो और वो अटैक नहीं कर रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी हिफाज़त में है। तो ये नबी वसल्लम ने उनको ये दे दिए कि जाके मक्का वालों को बोल दो कि अगर उन लोग अटैक नहीं करेंगे, तो वो क्या कैसे है, वो हिफाज़त में है। अब दूसरे दिन 17वाँ रमज़ान को मंगल के दिन नबी सल्लम मर ज़हरान की जगह पे पहुँचे, जो एकदम मक्का के एकदम बहुत करीब है, मतलब एकदम एंट्री पॉइंट की तरफ पहुँचे। और अब उन्होंने क्या किया, अपनी जो पूरी आर्मी थी, उसको बता रहे थे कि किस तरह से हम लोग मक्का में पहुँचोगे करके। तो नबी वसल्लम ने हज़रत अब्बास जो है उनको है ना, ये हज़रत सुफियान को बोले, नबी वसल्लम ने बोले हज़रत अब्बास को बोले, तुम लेके जाओ अपने साथ अबू सुफियान को, और एक जगह पे खड़ा हो, एक ऐसी जगह पे खड़ा हो कि वहां से है ना अबू सुफियान पूरा देख सके कि जितने भी मुसलमान लोग, जो आर्मी है जो मक्का की तरफ कूच करने वाली है, वो पूरी आर्मी को देख सके। तो वहाँ पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हैं, और उन लोग के सामने से क्या हो रही है, जो आर्मी है वो पूरी की पूरी मार्च करते हुए निकलती जा रही है। तो हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो देख के है ना एकदम ये हो गए। और अभी तो मतलब अब भी वो थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ना ये कबूल कर ले, इस्लाम कबूल कर रहे, लेकिन वो कैसे थे, वो पॉलिटिकल इंसान थे ना, तो उनके दिमाग में जब वो देख रहे हैं कि इतनी बड़ी इन लोग की आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी है, तो जब जब पूरी आर्मी जब जा रही थी, तो हजरत अब्बास से उन्होंने बोले कि अल्लाह की कसम, जो तुम्हारे भतीजे की बादशाह तो बहुत बड़ी हो गई है करके, उन्होंने इस तरह से हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को बोले। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ने बोले कि ये बादशाहत नहीं है, ये नबूवत है करके। फिर उसके बाद वहाँ पे है ना, जो झंडा जो था मुसलमान लोग का, वो साद बिन उबादा के हाथ में रख दिया हुआ था। तो साद बिन उबादा जो वो था, वो आगे लेके जा रहे थे झंडा, झंडा लेके जा रहे थे, और झंडा लेके कुछ अशार पढ़ रहे थे। तो जो अशार पढ़ रहे थे, तो उसमें वो कैसे वो पढ़ रहे थे, थोड़े भड़का हुए जैसे पढ़ रहे थे। उन्होंने क्या पढ़ रहे थे कि आज के दिन क्या होंगे, एक है ना बहुत सी बड़ी जंग होगी, और उसमें क्या है, जो हलाल जो हुर्मत है, जो खाने काबा की जो हुर्मत है, वो क्या कर दी गई है, वो हलाल कर दी गई है। और आज के दिन जो कुरैश है, उन लोग देखेंगे, हम लोग को देखेंगे, और आज के दिन कुरैश है वो उन लोग के लिए ना जिल्लत का दिन है करके इस तरह से अशार पढ़ रहे थे। तो अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु जो थे, वो वहां पे खड़े खड़े ये सब सुन लिए कि ये इस तरह से अशार पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जल्दी से गए और नबी वसल्लम को बोले कि देखो वो किस तरह से अशार पढ़ रहे हैं, कि मक्का जो है वो किस तरह कभी कैसे हलाल हो सकता है, कभी भी किसके लिए किसी के लिए भी किस तरह से हलाल हो सकता है, और वो बोल रहे हैं कि आज है ना कुरैश के लिए जिल्लत का दिन है करके। तो नबी वसल्लम ने बोले कि नहीं, उनको नबी वसल्लम ने क्या करे, किसी को भिजवाए, और साद रजी अल्लाह अन्हु से वो झंडा ले लिए, और वो बोले कि वो उनके बेटे कैस को दे दिए। और वो जब उन्होंने ये बोले थे, बोले कि नहीं, आज जो है
वो कुछ इस तरह से होगा नहीं, बल्कि कुरैश लोग को ज़िल्लत नहीं मिलेंगी, बल्कि कुरैश लोग को क्या मिलेंगी, आज इज़्ज़त मिलेंगी करके। और इस तरह से उन्होंने बोल के जो झंडा था वो साद रज़ी अल्लाह अन्हु से लेके उनके बेटे कैस रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में दे दिए। अब नबी वसल्लम ने क्या किए थे, सबको अलग-अलग जगह पे बैठा दिए थे कि है ना, तुम इस तरफ से वहाँ पे से जाके वहाँ पे पहुँचना, सब टुकड़ियों में बाँट दिए थे। एक एक टुकड़ी के सरदार कौन थे? खालिद बिन वलीद थे। तो उनको बता दिए थे कि तुम इस तरह से वहाँ पे जाना, ये जगह से पहुँचना, और अगर कुछ रास्ते में तुमको कोई अगर मिले, तो तुम सेल्फ डिफेंस में लड़ाई करना, तुम पहले अटैक नहीं करना। अगर कोई अटैक नहीं करेंगे तो तुम चुपचाप जाके मक्के के अंदर दाखिल हो जाना, और अगर कोई तुमसे लड़ाई करेगे तभी तुम लड़ाई करना करके इस तरह से बता दिए थे, और इस तरह से वहां पे पहुंच के वहां पे अपना झंडा लगा के वहां पर आके मुझे मिलना करके, इस तरह से नबी वसल्लम ने बता दिए कि तुम वहां पे जाना और उस तरह से मुझे मिलना करके। और फिर एक दूसरी टुकड़ी को भी जो हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उनको बोले कि तुम इस जगह से जाके फिर मरवा की तरफ से जाके मेरे को वहाँ से मिलना है। एक को सफ़ा की जगह से, एक को मरवा की जगह से, इस तरह से जाके सब जगह से मिलना करके इस तरह से नबी वसल्लम ने बता के बोले थे। और यहाँ पे जब ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, उनको है ना, भी जब ये आर्मी मार्च करती हुई जा रही है मक्के की तरफ, जब वो पूरा देख चुके और ये सब हो चुका, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान को बोले कि अब तुम क्या करो, अपना घोड़ा दौड़ाओ मक्के में, और जाके मक्के वालों को खबर कर दो कि मुसलमान लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई भी क्या नहीं करना, तुम लोग अटैक नहीं करना। अगर तुम लोग अटैक नहीं करोगे तो तुम लोग क्या रहोगे, अमान में रहोगे करके। तो अबू सुफियान अपना घोड़ा दौड़ाते हुए अभी पहुंच गए वहां पे मक्का में। अब ये जो आर्मी आ रही है, वो मार्च करते हुए आ रही है, तो वो आहिस्ता पहुंचेगी, समझो 1-2 घंटा पीछे पहुंचेगी, और ये अपना घोड़ा दौड़ाते हुए एकदम फास्ट मक्के के अंदर पहुंच गए। और मक्के में जाके उन्होंने आवाज लगाई, और उन्होंने बोले कि मक्के वालों सुन लो, कि आज तक तुमने जो कभी नहीं देखे रहेंगे उतनी बड़ी ये जो है वो सेना लेके मुसलमान लोग इस तरह से आ गए हैं, करके उन्होंने आवाज लगाई, तो उन लोग हम पे अटैक करने के लिए आ गए हैं। और तुम तो करके, लेकिन अगर तुम लोग उसके खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम लोग अमान में रहोगे करके। अब ये बात जैसे ही उन्होंने सुने कि अब मक्के मुसलमान लोग आ गए हैं, और यहाँ पे जो अबू सुफियान जो लीडर है, और वो क्या बोल रहा है, अटैक करने नहीं बोल रहा है, बल्कि मत अटैक करो करके बोल रहे हैं। तो उसकी जो बीवी थी हिंदा, वो बहुत गुस्से में आ गई, और उसने है ना, वो बहुत उसके शौहर को बोलने लगी कि तुम इस तरह से क्या बातें कर रहे हो, और उनको बहुत ये बातें करने लगी कि हम तो कुरैश है, अगर मुसलमान हम लोग से लड़ने भी आएंगे तो हम लोग तैयार है लड़ने के लिए, इस तरह से बातें करने लगी। तो अबू सुफियान बोले कि देखो, तुम लोग इस औरत की बातों में मत आओ, क्योंकि देखो हिंदा के बारे में हम जानते हैं कि हिंदा को भी जैसे अबू सुफियान के दिल में नाराजगी थी मुसलमानों के खिलाफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस तरह से जो हिंदा थी उनकी बीवी, उनको भी बहुत ज्यादा दुश्मनी थी नबी वसल्लम से, क्योंकि उनके वालिद और उनके भाई जो वो थे, वो कहाँ पे जंगे बदर में कत्ल हो गए थे करके, इसलिए वो उनके दिल में भी बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, और इसी का बदला उन्होंने किस तरह से लिए थे, जंगे उहुद में उन्होंने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करवा के लिए थे। तो अब फिर भी अभी भी उनकी दुश्मनी कायम है, तो उसकी बीवी ने बहुत बातें करने लगी, तो उस पर हज़रत सुफियान ने उन्होंने क्या बोले, सारे लोगों को समझाए कि देखो, तुम ये औरत की बातों में नहीं आओ, और वहाँ पर है ना, इतनी बड़ी ये सेना लेकर आए कि हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। और जो भी, और यहाँ पे है ना, नबी वसल्लम ने बोले हैं कि जो भी अबू सुफियान के घर में है वो कैसा है, वो अमन में है। तो जो आसपास जितने लोग खड़े थे, तो उन लोग बोलने लगे, ए अबू सुफियान, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, कितने लोग तुम्हारे घर में आ जाएंगे। तो उसके बाद अबू सुफियान ने बोले कि जो भी अपने घर में अपने घर का दरवाजा बंद करके है, तो वो भी क्या है, अमन में है करके। तो उसके बाद फिर अबू सुफियान ने बोले कि जो जो भी खाने काबा की हुदूद में है वो भी क्या है, अमन में है करके। तो मतलब वो बता रहे कि क्या करो, और है ना, रिटेलिएट मत करो, फाइट बैक मत करो, जो भी, अगर तुम लोग अमन में रहेंगे तो किसी को भी अटैक नहीं करेंगे, और मुसलमान लोग इस तरह से यहाँ पे कब्जा कर लेंगे करके, और अगर तुम लोग रिटेलिएट करेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पे लड़ाई होगी करके।
तो अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो क्या मत करो, वापस से पलट के लड़ाई मत करो। तो बहुत सारे लोग क्या करे, जिन लोग नहीं लड़ना चाहते थे उन लोग कहाँ चले गए, अपने अपने घरों में चले गए और खाने काबा में चले गए। लेकिन कुछ थोड़े से लोग थे जो 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 उन लोग क्या बोले कि नहीं, हम तो लड़ाई करेंगे ही, हम तो लड़ेंगे, हम इस तरह से ये नहीं करेंगे। तो उसमें कौन थे, एक इकरमा बिन अबू जहल का जो बेटा था इकरमा बिन अबू जहल, वो खड़ गए कि नहीं, हम तो लड़ाई करेंगे, हम इस तरह से उन लोग के सामने घुटने नहीं डालेंगे करके। तो इकरमा बिन अबू जहल, सफवान बिन उमैया और सोहिल बिन अम्र, इन लोग ने क्या करें, मक्का के बाहर जो एक जगह है खंदमा, वहां पे उन लोग क्या करे, अपना कैंप डाल दी कि हम यहाँ पे लड़ेंगे, यहाँ से हम लोग अंदर आने नहीं देंगे। और नबी सल्लम क्या किए, अभी जब एकदम अंदर आने लगे, एकदम मक्के की तरफ अंदर आ रहे थे, तो वो इतनी आजीजी से आए अंदर, कि मतलब ऐसा कोई सीना चौड़ा करके तान के जैसे कि आते सोल्जर्स, वैसा नहीं। बोलते कि नबी सल्लम इतना झुकते हुए, और हम तो सना करते हुए अल्लाह की, इतना झुकते हुए आए कि उनके सीना कहाँ पे लग रहा था, जो कैमल है उनका, ऊंट किस्वा है, उसको लग रहा था, मतलब इतने झुकते हुए वो अंदर आए, उस तरह से वो अंदर आए। और फिर खालिद बिन वलीद जो थे वो एक जगह से जहाँ अंदर आए, तो वहां पे से ज्यादातर जो कबीले थे वो क्या करे, उनके कमांड में थे, उन लोग भी उस तरह से अंदर आए, तो उन लोग बिगर रेजिस्टेंस से पहुंच गए, वहां पे मक्का के अंदर पहुंच गए। और कुछ थोड़ा सा ये हुआ, जो जुबैर बिन अवाम जो थे उन वो दूसरी जगह से अंदर आए, और उसमें से फिर अबू उबैदा जो थे वो भी एक दूसरी जगह से, जहाँ से उनको बोला गया था, वहां से वो अंदर आए। तो इन लोग, ये जो सारे लोगों को, ज्यादातर किसी ने भी पलट के अटैक नहीं किए, तो इन लोग सब जैसे जैसे नबी वसल्लम ने बताए थे उस तरह से उन लोग सारे के सारे लोग अंदर आ गए। कुछ है ना, थोड़ी सी जगह जो हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु जो थे, जिस तरह से वहां पे आ रहे थे, वहां पर है ना उनसे मुकाबला किया गया था। तो उन्होंने क्या किया, जो छोटा सा जो टुकड़ी जो थी मुकाबला करने के लिए, तो वो 12 लोगों को वहां पे उन्होंने क्या किए, कत्ल कर दिए। लेकिन उनके साथ जो 2 लोग थे वो शहीद हो गए, और वो भी है ना इस तरह से शहीद हो गए थे कि ये 2 लोग क्या हो गए थे, पीछे छूट गए थे। तो वो अपने काफिले से अलग हो गए थे, अपनी मिलिट्री मिलिट्री कैंप से अलग हो गए थे, उन लोग थोड़ा पीछे छूट गए थे, इस वजह से इन लोग दोनों वहां पे शहीद हो गए। वरना बाकी के सारे लोग, कोई भी वहां पे ज्यादा खून खराबा हुआ नहीं, सिर्फ ये थोड़े से लोग का ही वहां पे मक्के में कत्ल हुआ था। और इस तरह से सारे के सारे, और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु जब पहुंचे अपनी, जहाँ पर वो जो उनको बोला गया था कि तुम उस तरफ जगह, वहां से वहां पे पहुंच जाना, तो वो वहां पर गए। और उन्होंने क्या किया, नबी सल्लम के लिए एक टेंट बना दिए, एक छोटा सा ये पड़ाव बना दी कि जहाँ पर आए नबी सल्लम और आके इंतजार करे, आराम कर सके करके। फिर नबी सल्लम वहां पे पहुंचे, जैसे कि सारे लोग थे जिन लोगों को जैसा हुक्म दिया गया था, सारी टुकड़ियां सब मिली और पहुंची मक्के में। और मक्के की जो फतह हुई वो इस तरह से हुई कि मक्के में, मतलब ये बोलते कि बहुत ब्लडलेस होती है, जहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, इस तरह से मक्का फतेह हो गया। अब देखो, एक सिटी को अगर हमको फतह करना है तो कितनी लड़ाई और कितनी जंग होंगी, और वो भी मक्का जैसा शहर, जिस जो कितना हुर्मत वाला है। तो लेकिन उस सिटी के लिए उनके लोगों ने, जो वहाँ के लोग थे कुरैश, उन लोग ने क्या किए, ज्यादा लड़ाई नहीं किए, और उन लोग ने, सब लोग ने क्या कर लिए, नबी वसल्लम को इजाजत दे दी कि तुम आ जाओ, और उन लोग ने ये कर दी। अच्छा, अब ये किस लिए करे थे, क्योंकि जब हम देखते हैं हुदैबिया में क्या हुआ था, मुसलमानों को क्या इजाजत दे दी गई थी कि उन लोग आ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, और जो ये कुरैश लोग हैं वो मदीना जा सकते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ था, वहां पे ना ऐसे ऐसे लोगों को पता चलने लगा था, कुरान की आयतें पता चलने लगी थी, इस्लाम के बारे में पता चलने लगा था, और इस्लाम, मुसलमान लोगों के किरदार कितने अच्छे हैं, कितने, ये सारी बातें समझ में आने लगी। तो कुछ लोगों के दिल में ऐसे ऐसे इस्लाम ने क्या कर लिया था, घर कर लिया था। तो उन लोग को इस तरह से, नबी वसल्लम को अगर वो वापस में मक्का आके अगर नबी वसल्लम के अंदर उनको रहना पड़े, तो उन लोग को कोई भी इस बात पे तकलीफ नहीं थी, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी थोड़े बहुत मुसलमान हो ही चुके थे, उन लोग के दिल में ईमान आ ही चुका था। और जो कुछ लोग जो थे, उन लोग ने क्या किए थे, ऐलानिया ये कर लिए थे कि हम लोग मुसलमान हो गए, और हिजरत कर लिए थे जो कर सकते थे। और जो कुछ नहीं करे थे, उन लोग वहीं पर रह रहे थे। और हमने देखे थे कैसे खालिद बिन वलीद और सोहेल बिन अम्र जो है, वो जो बड़े बड़े सरदार थे, उन लोग ने भी क्या किए थे,
ये ला लिए थे, ईमान ला लिए थे और यहाँ पर आ गए थे। सॉरी, ये खालिद बिन वलीद और दूसरे एक सरदार जो बड़े सरदार थे वो ये लाए थे, सोहेल बिन अम्र नहीं। और इन लोग क्या करे थे, मदीना में आ गए थे। तो इस तरह वहां पे ऑलरेडी जो था मक्का में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे उन लोग के दिल फिर गए थे, इस्लाम की तरफ दिल फिर गए थे, इसलिए वहां के लोग ने भी क्या नहीं किए, पलट के अटैक नहीं किए। अब इस तरह से क्या हो गया, मक्का जो था वो फातेह हो गया, बिगर लड़ाई किए, बिगर इसके फातेह हो गया था। अच्छा, अब नबी सल्लम ने क्या किए, फातेह होने के बाद वो उनके लिए हजरत जुबैर रजी अल्लाह उन्होंने क्या किए थे, टेंट लगाए थे। लेकिन वो क्या करे, वो टेंट से निकले। अ, अजान हो रही है, मैं रुक के बाद बोलती हूँ। अब क्या अब क्या हुआ, अभी नबी सल्लम वहां पे वो कैंप में थोड़ी देर रहने के बाद वो खाने काबा की तरफ पहुंचे। खाने काबा में जो खाने काबा के अंदर गए और है ना, वहां पे गए और उन्होंने क्या किया, अंदर जाने के बाद उन्होंने क्या किए, अल्लाह की बड़ाई की, कलमा पढ़े और अल्लाह की हम्दो सना किए। और उसके बाद उन्होंने क्या किए, वहां पे जितने ये वहां पे उस वक्त खाने काबा में 360 बुत थे, स्टेचूज थे। तो उन्होंने क्या किए, वो सारे जो स्टेचूज थे अपने हाथों से उन्होंने क्या किए, उनके हाथ में जो छड़ी थी उससे वो छड़ी से उन बुतों को मार रहे थे और गिरा रहे थे। और साथ में ये आयत पढ़ रहे थे, वकुल जाल हकु वजाहकल बातिनो इन्नल बातिला काना जहूका। तो ये आयत की तिलावत करते हुए नबी वसल्लम ने क्या किए, उन जो जितने भी बुत थे उसको सबको तोड़ दिया। और उन जब सहाबा लोग ने देखे कि नबी वसल्लम ने बुतों को तोड़े हैं, तो उन्होंने भी उनके सामने जितने भी सारे बुत आए थे वो सारों को भी नीचे गिरा के तोड़ के ये कर दिए। और ये आयत पढ़ते जा रहे थे, और उसका मतलब है कि हक आ गया है और बातिल चला गया, और बेशक बातिल कैसा है, गायब ही होने वाला है, क्योंकि हक के सामने बातिल नहीं टिकने वाला है। फिर उसके बाद उन्होंने नबी वसल्लम ने ये भी आयत पढ़ी कि कुल जाल हक वमा यदील बातिलो वमा यईद। तो कह दो कि जो हक है वो आ गया है, और बातिल जो है वो ना कभी कोई चीज बनाता है और ना ही वो उससे कुछ चीज बनती है और ना वो बनाया जाता है। तो ये आयतें पढ़ते हुए नबी वसल्लम ने क्या किए, जितनी भी मूर्तियां थी उनको सबको तोड़ दिए। फिर नबी वसल्लम ने क्या किए, तवाफ करने लगे। और उन्होंने क्या किए, जिस तरह से तवाफ किया जाता था उस तरह से पूरा उन्होंने तवाफ किए। लेकिन उस वक्त वो एहराम की हालत में नहीं थे, और उन्होंने फिर भी वहां पे पूरा तवाफ किए। फिर उन्होंने क्या किए, तवाफ करने के बाद वो है ना, उन्होंने क्या किए, चाबी मंगाए। हजरत उस्मान बिन तलहा को बुलाया गया और उन्होंने क्या किया, उससे चाबी लिए और चाबी लेके खाने काबा का दरवाजा खोले। और उन्होंने खाने काबा का जो अंदर का जो मेन दरवाजा है, जो खाने काबा के अंदर, उसके अंदर वो गए। और उसके अंदर गए और उसके अंदर भी उन्होंने फिर क्या किए, वहां पे देखे कि वहां पे जो लोग थे उन्होंने वहां पे भी अंदर भी उन्होंने क्या करे थे, बुत रखे हुए थे। और है ना, कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी, उन्होंने जो उसकी उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की ऐसी जिस पेंटिंग्स बना के रखे थे, ड्राइंग्स बना के रखे थे। तो नबी वसल्लम ने बोले कि यहाँ पे भी जितने भी बुत हुए वो सबको तोड़ दो, और जो भी पेंटिंग वेंटिंग है कुछ भी जो बनी हुई है उसको भी क्या कर दो, उसको भी सब मिटा दो करके। फिर उनके साथ अंदर जाने के बाद उनके साथ हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु थे। और वो अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने फिर क्या कि नबी वसल्लम ने वहां पे नमाज अदा की। और नमाज अदा करने के बाद फिर वो क्या किए, बाहर आए, बाहर की तरफ आए, जो दहलीज है उसके तरफ आए और वहां पे खड़े। और अभी सारे के सारे जो मक्का वाले हैं वो खड़े हैं, मतलब नबी वसल्लम के साथ 10,000 की आर्मी आई है। तो वो 10,000 की आर्मी प्लस मक्का के लोग, वो सारे के सारे लोग खड़े हैं। तो उसके बाद नबी वसल्लम क्या कर रहे हैं, जब वो खाने काबा के दरवाजे पे खड़े हैं, और फिर उन्होंने क्या किए, कलमा पढ़े कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और उसके साथ कोई शरीक नहीं है, कह के उन्होंने कलमा पढ़े।
اور یہ اللہ ہی کا یہ ہے کہ اس نے کیا کیے، اپنے غلام کو کیا کیا، اس نے اس کی مدد کی اور سارے جتنے بھی سامنے اس کے جتنے بھی لوگ تھے اور جتنے بھی پارٹیز تھی وہ سب کو کیا دے دی، شکست دے دی۔ اور پھر یہ سارے لوگ یہ خیال رکھے کہ کسی کا بھی خون اور کسی کی بھی پراپرٹی جو بھی ہے یہ سب ابھی میرے اس میں ہے، اور ابھی یہ ساری چیزیں کیا ہے وہ میرے اس میں ہے، سوائے جو خانے کعبہ کا جو جو دیکھ بھال کرنا ہے وہ، اور اس کو پانی پلانا کر کے اس طرح سے انہوں نے بولے، اور پھر بولے کہ یاد رکھو یہاں پہ ابھی کوئی بھی کیا نہیں کرے گا، حد سے نہیں بڑھے گا، کوئی بھی مطلب کوئی بھی غلط کام اور کچھ بھی اس چیز سے حد سے نہیں بڑھنا، مطلب ابھی جنگ کا جیسا ماحول ہے نا، لڑائی کا ماحول ہے، تو کوئی بھی نہ کسی کو بھی قتل نہیں کرے گا یا مارے گا نہیں، اور اگر کسی نے بھی کوئی بھی آرمی مسلمان آرمی جو بھی ہو کوئی بھی اگر اس نے ناحق کسی کو بھی مارنے کی کوشش کری یا قتل کرنے کی کوشش کری تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، جو یہ دینا پڑتا ہے نا رقم، فدیے کی جو رقم دینی پڑتی ہے وہ بہت بھاری رقم ادا کرنی پڑے گی، اس کو 100 اونٹ کی رقم ادا کرنی پڑے گی، اس میں سے بھی 40 اونٹ جو ہے وہ پریگننٹ اونٹ دینا پڑے گا۔ تو مطلب انہوں نے یہاں پہ جتنے بھی ان کی جو آرمی تھی ان کو کیا بول دیا، بہت سختی سے تاکید کر دیے کہ ابھی ہم لوگ نے فتح کر لی ہے، مکے میں آ گئے، تو اگر دیکھو کوئی جو مسلمان لوگ تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے اب وہ اپنے پہنچے ہیں گھر، اور جب ان کو یاد آئے گا نا کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ جو تھے یہ سردار تھے، ان لوگ نے ہمارے ساتھ اتنا طرح غلط سلوک کیے تھے، تو آج ہمارا تو بدلہ لینے کا ٹائم ہے، آج ہم جو چاہے وہ ہم کر سکتے ہیں کر کے ان لوگ کے دل میں آئیں گا ابھی، تو کبھی وہ اپنے جذبات میں آ کے یہ نہیں کر دے، ابھی ان لوگ نے سامنے والے نے تو سرنڈر کر دیا کہ سامنے والا تو بول رہا ہے کہ میں ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، لیکن جب ان لوگ اٹیک کرنے کے لیے آئے تو اس کو دیکھ کے سامنے والے کو دیکھ کے ان لوگ کے ساتھ جو پرانی دشمنی ان لوگ نے کیے تھے تو اس کے جذبات یہ ہو سکتے نا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کر دی کہ اگر کوئی بھی شخص غلطی سے بھی اگر کسی کو زبردستی مارا یا قتل کیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، جو فدیہ دینا پڑے گا وہ بہت بھاری فدیہ رہے گا کر کے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، قرآن کی جو آیت تھی اس کی تلاوت کرے، انہوں نے اس کی تلاوت کرے، اور انہوں نے سارے لوگوں کو بولے کہ جو قریش لوگوں کو سب سے بولے کہ قریش کے لوگوں، اللہ نے کیا کیے ہے تمہاری جتنی بھی یہ جو تھی جس بات کی تم لوگ یہ کرتے تھے کہ ہم قریش ہے، ہم کھانے کے متولی ہے، اور جتنی بھی جاہلیت کی رسم تھی اور یہ ساری تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کری ہے اس کو سب کو یہ ختم کر دیے ہے، اور ہے نا سارے لوگ کس کے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کیا کس سے بنے تھے، مٹی سے بنے تھے۔ تو یہ جو قریش لوگ جس بات پہ گھمنڈ کرتے تھے کہ ہم لوگ قریش ہے، ہم لوگ بہت یہ اعلیٰ ہے، ہمارے کو یہ کچھ یہ نہیں ہے کر کے، تو اس ساری باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ختم کر دیا، اور سارے قریش کو بھی بتا دی کہ اللہ نے کیا کیے، جو تم کو جو بڑپن دیا گیا تھا وہ سب ہے نا آج وہ ختم ہے، اور ہے نا یہ سارے لوگ کس یہ کیا ہے، آ، سارے لوگ کس کی یہ ہے اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی، اور آدم علیہ السلام خود کس سے بنے تھے، مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ پھر نبی علیہ وسلم نے کیا کیا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پڑھی جس میں لکھا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلے میں بنایا ہے کہ تم تاکہ ایک دوسرے کو تم جان سکو، اور خدا کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو قریش کے لوگ تھے اور جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کو کیا بات بتائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو مرد اور عورت میں بنائے ہیں، اور ان کو کم یہ قبیلوں میں اور اس سب چیزوں میں کیوں بانٹے ہیں، تاکہ کیا کر سکے ایک دوسرے کو وہ لوگ پہچان سکے، اس لیے ان کا خاندان اور قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ احترام والا کون ہے، جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے کے ٹائم پہ یہ نہیں دیکھیں گا کہ یہ عورت ہے تو اس کو الگ طریقے سے دیا دیکھا جائے، اور یہ مرد ہے اور یہ بڑے گھرانے کا ہے، یہ بڑے گھر کا قبیلے کا، تو اس کو کچھ الگ طرح سے یہ کیا جائے۔ جب
हिसाब किताब का दिन होएगा, तब इंसाफ का दिन होएगा, तो अल्लाह सुब्हान तआला किस तरह से मापेंगे इंसान को उसके तकवे के हिसाब से। जिसमें जितना तकवा होगा, वो उतना ज़्यादा अल्लाह सुब्हान तआला से करीब होगा करके। फिर अब उन लोग है ना फिर नबी वसल्लम ने सारे लोगों को पूछे, ये सारी आयतें पढ़ने के बाद नबी वसल्लम ने वहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों को पूछे कि ए कुरैश के लोगों, तुम लोग को क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा करके। तो जो सारे कुरैश के लोग थे, अब वो देखो ये कुरैश के लोग यही है जिन्होंने क्या किए थे नबी वसल्लम को, जब सबसे पहले उन्होंने इस्लाम की दावत देना शुरू किए थे, तो उनको कितना सताए थे। उनके ऊपर कितनी सारी तकलीफ़ें करते थे। उनको 3 साल तक उन्होंने क्या किए थे, मक्के से खाने काबा से ही उन लोग को घर निकाल दिए थे, बाहर निकाल दिए थे और इतनी तकलीफ़ें दिए, इतनी अज़ियत दिए नबी वसल्लम को यहाँ तक कि उनके ऊपर क्या-क्या चीज़ डाल दिया करते थे, उनके ऊपर कचरा डाल दिया करते थे उनको और लह यहाँ तक कि इतनी बढ़ गई थी बात कि उनको जान से मारने की भी पूरी इन लोग ने कोशिश कर दी। तो ऐसे लोगों को नबी वसल्लम अभी खड़ के पूछते हैं और आज कौन पाते हैं? आज नबी वसल्लम पाते होके पूछ रहे हैं कि, "ऐ कुरैश के लोगों, तुम लोग को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा?" करके। जो कुरैश के जो लोग थे, सरदार थे, उन लोग ने बोलने लगे कि ए करीम भाई, तुम एक करीम बाप के बेटे हो, तो हम लोग तुमसे क्या उम्मीद रखते हैं, हम लोग सिर्फ़ तुमसे अच्छाई की ही उम्मीद रखते हैं। तो मतलब अब ये सारे लोग को पता भी है, उसमें से कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे भी थे, तो लेकिन फिर भी उन लोग में से जो बड़े सरदार हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि तुम कैसे हो? करीम भाई हो और तुम किसकी औलाद हो? तुम्हारे जो वालिद थे, वो भी बहुत अच्छे थे, तो हम क्या तुमसे ये रखते कि तुम अच्छे हैं, तुम्हारे वालिद भी अच्छे थे, तो हम भी तुमसे ना सिर्फ़ अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि मैं भी आज तुमसे वही बात बोलूँगा जो यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने भाइयों के लिए बोले थे। कि आज कोई भी तुम पर आज आज के दिन तुम पे कुछ भी ये नहीं लिया जाएगा, आज हम तुमको सबको क्या करते हैं, माफ़ करते हैं करके। तो नबी सल्लम ने क्या है कि जितने भी कुरैश लोग थे उनसे कोई भी बदला नहीं लिए, वो सारे के सारे को क्या दे दिए, माफ़ी दे दिए। बोले कि तुम लोग सब क्या हो, फ्री हो। मतलब कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी कौम आके कोई भी लोग एक-दूसरे के ऊपर क्या करते थे, हुकूमत कर लेते थे, तो वो सारे के सारे लोगों को क्या बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे नबी वसल्लम ने क्या बोल दिया कि तुम सारे लोग आज़ाद हो, तुम लोग में से किसी को भी गुलाम नहीं बनाया जाएगा करके। और फिर है ना अब ये लोग खाने काबा के दरवाजे में खाने काबा में खड़े हुए हैं, तो हज़रत अली और हज़रत अब्बास बोल रहे थे कि अब ये जो खाना काबा है अल्लाह का घर है, इसकी देख-रेख का हम लोग को दे दो। पानी पिलाने का काम और इसका और खाने काबे के दरवाजे की चाबी हम लोग को दे दो। तो नबी सल्लम ने बोले उस्मान बिन तल्हा कहाँ है? उनको बुलाओ करके। और नबी सल्लम ने फिर क्या करे उस्मान बिन तल्हा जिनके हाथ में पहले से चाबी थी, उन्हीं को वापस से वो चाबी दे दी। बोले कि ए उस्मान तुम ये चाबी रख लो और ये चाबी है ना तुम्हारे पीछे भी है ना जितने भी लोग आएंगे तुम्हारे खानदान में ही ये चाबी रहेगी करके कोई तुमसे ये चाबी नहीं ले सकता है करके और जो पानी पिलाने का काम था वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को दे दिए तो ये जो चाबी है जो खाने काबा के दरवाजे की चाबी वो अब तक भी कि इसके पास है उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान वालों के पास है। आज तक भी वो जो चाबी है वो उनके पास ही रहती है और है ना जब भी दरवाज़ा खोलना होता है, जब साल में एक बार जब वो दरवाज़ा खुलता है, तो उनके घराने के ही लोग आके उस चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं, फिर उसके अंदर वो जो राजा है और वो सारे लोग जाते हैं। तो ये खाने काबा की चाबी इतने सालों तक उनके ही खानदानों में चलती आ रही है। प्लस और एक जो मस्जिद है यहाँ पे जो जेरूसलम में जो मस्जिद है, वहाँ पे जब हज़रत उमर ने जाके वहाँ पे फ़तेह किए थे, तो वहाँ के लोग ने भी क्या किए थे न हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने चर्च में लेके गए थे, जो फ़ातिहा होने के बाद अपने चर्च में लेके गए थे और हज़रत उमर को बोले थे जब वहाँ पे असर का वक़्त हो गया था, कोई नमाज़ का वक़्त हो गया था, तो उनको बोले थे कि आप यहाँ पे नमाज़ अदा कर लो। तो हज़रत उमर ने बोले थे कि नहीं मैं यहाँ पे अगर नमाज़ आज अदा कर लूँगा, तो कल के जो पीछे जो मेरे लोग आएँगे तो उन लोग भी मैंने जैसा नमाज़ अदा किया था वैसे उन लोग भी नमाज़ अदा करने की कोशिश करेंगे, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगी तकलीफ हो जाएगी। तो वो क्या करे उन्होंने चर्च से निकल के जाके थोड़ी दूर जगह पे जाके नमाज़ अदा की है। तो वहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई थी और वो मस्जिद क्या थी, हज़रत उमर के नाम से मस्जिद उमर के नाम से मशहूर है। और वहाँ के जो चर्च है उसकी चाबी क्या किए थे हज़रत उमर ने एक मुसलमान घराने को दिए थे, तो वो भी चाबी आज तक भी है ना उन मुसलमान घरानों के हाथ में है।
वो चर्च है वहाँ पे जेरूसलम में, उसकी चाबी इन लोग के हाथ जेरूसलम में, तो वहाँ पे उसकी चाबी उन लोग के हाथ में है। और आज भी जब भी वहाँ पे उस चर्च को खुलना होता है, तो वहाँ पे ये मुसलमान घराना जाता है, वो चाबी से चर्च को खोलता है और फिर वहाँ पे ये होता है। तो ये 2 जो है, एक मस्जिद हरम की चाबी और ये यहाँ पे ये जो चर्च है इसकी चाबी वो उस ज़माने से उन उसी खानदान में चली आ रही है और उन लोग के पास ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद नबी वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को बोले, अब नमाज़ का वक़्त आ गया था कि तुम जाओ खाने काबा की छत पे जाओ और जाके क्या करो, अज़ान दो। तुम अहद अहद करते थे ना, तो अब क्या करो, अब जाओ और जाके वहाँ पे है ना खाने काबा के उस पे जाके तुम अज़ान दो करके। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जाके मस्जिद खाने काबा के ऊपर चढ़े और वहाँ पर उन्होंने अज़ान दी। अब वहाँ पे जब अज़ान दी तो वहाँ पे अबू सुफियान बिन हर्ब, अताब बिन असीद और हारिथ बिन हिशाम, ये है ना, अब ये तीनों है ना, ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और मतलब अब इन लोग अब भी इसमें से अबू सुफियान तो है वो इस्लाम कबूल कर लिए, लेकिन ये जो दोनों लोग हैं वो है ना, इन लोग ने इस्लाम कबूल नहीं किए। और ये बड़े-बड़े सरदार है ना, तो इन लोग को है ना, इन लोग के दिल में बहुत गुस्सा आ रहा है उन लोग को। कि इन लोग क्या हो गए, इन लोग हार गए, इन लोग बिगड़ लड़े, हार गए, इन लोग कुछ कर नहीं पाए। और लेकिन इन लोग के दिल में बहुत गुस्सा है। और जब उन लोग सुन रहे हैं अज़ान की आवाज़, तो उन लोग को और ये हो रहा है। तो उसमें से जो अताब बिन असीद है ना, वो बोले कि जब अज़ान की आवाज़ सुने तो उन्होंने बोले कि अच्छा हुआ जो उनके जो अब्बा जो थे, उनको अल्लाह ने उठा लिया और अब उनको ये दिन देखना नहीं पड़ा करके। और वहाँ पे जो अबू सुफियान जो थे, उन्होंने बोले कि मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगा, अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये जो पत्थर भी है, वो क्या करेगा, ये जाके है ना खबर नबी सल्लम को बोलेंगे। और उसमें जो हारिस जो थे वो बोले कि अगर मुझे यकीन आ जाए ना इनके इसका नबूवत का, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा करके। तो जब ये थोड़ी देर के बाद इन लोग जब नबी वसल्लम से मिले थे, तो ये जो तीनों बातें कर रहे थे, अब यहाँ पे ये तीनों खड़े हुए थे ना और कोई भी नहीं था। तो ये नबी वसल्लम ने इनको सारी बातें बता दी कि तुम लोग वहाँ पे खड़े हो किस तरह से बातें कर रहे थे। तो जो हारिस जो थे उन्होंने देखे कि और उनको वो ये हो गया था ना, वो पहले से ही बोले थे ना कि अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि जिस पे मेरे को यकीन आ जाए कि सच में ये नबी है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो उन्होंने क्या कर लिया, उन लोग ने झट से उन्होंने वहाँ पे भी उन लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया। अब ये सहाबा के बारे में और एक भी बात है कि इन्होंने देखो कलमा कबूल कर लिया, इनको पता चल गया कि वही के ज़रिए सारी चीज़ें इनको पता चल जाती है करके नबी वसल्लम ने जब बता दी बात। कुछ दिनों के बाद ये जो थे, ये सहाबा आए नबी वसल्लम के पास और उन्होंने पूछे, नबी वसल्लम से सवाल किए थे कि बताओ कि वही की कितनी किस्में हैं, किस तरह से आप तक ये वही आती, किस तरह से आपको ये सारी बात बताई जाती है। तो उसके बाद नबी वसल्लम ने जवाब दिए थे कि वही की मेरे पास इतनी इतनी किस्में रहती है और इस तरह से मेरे पे नाजिल होती है। तो ये जो देखो जो पुराने जो मुसलमान थे, जो बदर के टाइम से जो शुरू-शुरू अव्वलीन मुस्लिमीन थे, वो कैसे थे? वो नबी वसल्लम से इतने ये करते थे कि जो नबी वसल्लम बोलते बस वो सुनते थे, वो करते थे और वो कभी उन लोग कुछ सवाल ही नहीं करते थे। लेकिन अब ये जो नए मुसलमान थे ना, उन लोग क्या करने लगे थे, सवाल भी कुछ नबी वसल्लम से करने लगे थे। तो ये जो पुराने मुसलमान थे ना, तो वो उन लोग बोलते थे कि जब ये नए मुसलमान लोग जब इस तरह से सवाल जब करने लगे थे, तो हमको भी है ना हमारे दीन के बारे में और भी जानने के लिए मालूम पड़ता था। अब देखो वही की बात उन लोगों को सिर्फ़ ये पता थी कि वही नाज़िल होती है। किस तरह से नाज़िल होती है, किस शक्ल में नाज़िल होती है, कैसी नाज़िल होती है, वो सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था और किसी ने पूछा नहीं था। लेकिन अब इन्होंने पूछे तो ये सारी बात ये सारे लोगों को पता चली और मैंने ये पहले भी हो चुका था कि किस तरह से उन पे नाज़िल होती है। एक उनको घंटी की शक्ल में नाज़िल होती है और कभी-कभी जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद आते हैं और बता के जाते हैं। कभी-कभी जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी का ये लेकर आते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग शक्लों में नबी वसल्लम पे नाज़िल होती है। तो ये सब नबी वसल्लम ने बताए तभी उस वक़्त। फिर उसके बाद जो है नबी वसल्लम ये सब होने के बाद उन्होंने कहाँ पर गए, उनकी जो ये थी फूफू के घर पे, उम्मे हानी के घर पे वो गए और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किए, 2 रकात नमाज़ अदा की। 2 रकात कोई बोलते कि वो शुक्राना की नमाज़ थी या कोई बोलते कि वो जो फ़ाते हो गए थे उसकी नमाज़ अदा की। अब उम्मे हानी जो थे उन्होंने क्या किए थे, 2 जो मक्का के लोग थे उनको उन्होंने ये दे के रखे थे, पनाह दे के रखे थे। अपने घर में उन्होंने 2 लोगों को पनाह कर दे के रखे थे।
तो नबी वसल्लम ने उनकी फूफू को बोले कि जिनको तुमने पनाह दी है उनको हमने भी पनाह दे दी, मतलब वो तुम्हारे घर में तुमने उनको पनाह दी तो हमारे तरफ से भी उनकी पनाह है, उन पे कोई अटैक नहीं होगा। अब लेकिन यहाँ पे ये सारे लोगों को नबी वसल्लम ने माफ कर दिया, लेकिन कुछ जो लोग थे, उसमें से जो 9 लोग थे, उन लोग पे ये हुक्म दे दिया गया था कि ये 9 लोग हैं ना, अगर तुमको खाने काबा के पास भी के पर्दे में भी गिलाफ के पास भी तुमको मिल जाएँगे, तब भी तुमको क्या करना है, उनका कत्ल करना है। क्योंकि ये जो लोग हैं, वो इस्लाम के बदतरीन दुश्मन हैं। तो उसमें से एक थे अबुल ऊज़ा बिन खत्ताब। तो ये हम मिल गए तो इनको कत्ल कर दिया गया। फिर इस तरह से अब्दुल्ला बिन अबू सर्रा जो थे, वो ये भी वहाँ पे मिल गए क्योंकि ये पहले मुसलमान हुए थे, इन्होंने हिजरत की लेकिन फिर इन्होंने क्या किए थे वापिस से मुर्तद हो गए थे और कुछ सहाबा का कत्ल भी कर दिए थे, तो इसलिए इनको भी कत्ल कर दिया गया था। और इस तरह से एक मिक्यास बिन सबाहा ये भी तीसरे जो थे इनको भी कत्ल कर दिया गया था। अब इसमें जो थे इकरमा बिन अबू जहल उनका भी नाम था कि ये भी अगर तुम्हें कहीं पे भी दिख जाए तो इनको भी क्या कर देना, इनको भी कत्ल कर देना। तो ये है ना मक्के से बाहर चले गए थे, खाने काबा से बाहर भाग गए थे। लेकिन फिर ये है इकरमा बिन अबू जहल के बेटे, ये लेकिन ये वापस वापस आए मक्के में, जब मतलब ये इनकी भी एक पूरी कहानी है कि ये क्या कर रहे थे, मक्के से बाहर भाग गए थे। बोले कि मक्के में तो अभी मुसलमानों पे ये हो गया और प्लस इनके नाम पे ये भी जारी हो गया है फरमान कि अगर इनको देखा जाए तो क्या कर दो, इनको कत्ल कर दो। तो ये मक्के से बाहर चले गए, भाग गए। और एक है ना दरिया से वो पार होने के लिए जा रहे थे, दरिया से वो पार होने के लिए जा रहे थे, तो नाव कश्ती में सवार हुए, कश्ती में सवार हुए, तो वो कश्ती में क्या हो गया, एक तूफान के जैसा आ गया, तूफान के जैसा आ गया। तो जितने भी सारे लोग थे ना उस वक्त उन लोग ने क्या करने लगे, अल्लाह को पुकारने लगे, सारे के सारे मिलके उस वक्त अल्लाह को पुकार रहे और कोई किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकार रहे। तो ये बात जब देखे इकरमा बिन अबू जहल, तो उनको समझ में आया कि यही बात की दावत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दे रहे कि सिर्फ एक वाहिद को पुकारो। जब देखो जब तकलीफ पड़ती है, जब ये पड़ती है तो अलग अलगों को तो नहीं पुकारते, मन और सलात उज्जा सबको नहीं पुकारते, तब तो ये सारे लोग मिलकर सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। लेकिन दूसरे टाइम पे मन और सलात और उज्जा उस सबको लोग इसके ये टाइम पे इसको पुकारते, उसको पुकारते, अलग अलग दिन मुकर्रर करे। लेकिन जब जान पे आती है, तकलीफ आती है, तो सिर्फ तब किस याद आता है इन लोग को, अल्लाह याद आता है। और यही बात तो नबी सल्लम भी बता रहे कि सिर्फ एक अल्लाह वाहदहू को पुकारो। तो बोले तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि नबी सल्लम सच की दावत दे रहे, तो वो वापस पलट के वापस मक्का की तरफ आने लगे। और इत्ते में उनकी जो बीवी थी, वो है ना, वो जाके नबी वसल्लम के सामने जाके उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिए थे और प्लस उन्होंने क्या कर लिए थे, अपने शौहर की जान और हिफाज़त की अमान भी माँग ली थी कि देखो उनके शौहर के लिए तो फरमान जारी हो गया था, लेकिन मुझे है ना उनकी जान की हिफाज़त की अमान दे दो करके। तो जब इकरमा बिन वो अबू जहल वापिस आ रहे थे तो उनको रास्ते में ही उनकी बीवी मिल गई और उन्होंने बोल दिया उनकी बीवी ने कि मैंने आपकी जान की अमान माँग ली हूँ, तो आप सबसे पहले मेरे साथ चलो, नबी वसल्लम के सामने चलो। और फिर वहाँ पे इकरमा बिन अबू जहल जो थे, उन्होंने फिर नबी वसल्लम के सामने गए और उन्होंने क्या कर लिए, कलमा पढ़ लिए। तो इस तरह से नबी वसल्लम ने इनको भी माफ़ कर दी। फिर जो वहशी जो थे, जिन्होंने हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किए थे, तो वो भी आके जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो उनको भी माफ़ कर दिया गया। और ये जो अबू सुफियान की जो बीबी थी हिंदा, तो उनको भी नबी सल्लम ने माफ़ कर दिए। लेकिन ये दोनों लोगों को क्या कहा गया था कि है ना, तुम जब भी अगर आओ मजलिस में बैठने के लिए, तो तुम क्या करना, मेरे सामने नहीं बैठना। जो वहशी थे उनको बोले थे कि तो तुम कभी भी है ना मेरे सामने नहीं बैठना, एकदम दूर बैठना, मेरी नजरों के सामने मत रहना, दूर बैठना। उनको माफ तो कर दिए, लेकिन जब भी वो उनको देखते थे तो उनको अपनी चाचा की याद आ जाती थी। तो वो क्या, नबी वसल्लम ने उनको बोले कि तुम मेरे सामने नहीं, और हिंदा को भी यही बताया, बोला गया था कि तुम भी क्या नहीं करना, मेरे सामने नहीं आना, पर्दे में रहना या दूर रहना, मेरे सामने नहीं आना, क्योंकि ये दोनों की वजह से हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की मौत हुई थी इसलिए। और इसी तरह से भी और कुछ लोग जो थे हब्बार करके, जिन्होंने नबी वसल्लम की बेटी को मारा था, जिसके वजह से आखिर में इतनी मतलब उनको उसने कुछ घाव दिए थे, उस घाव की वजह से ही बाद में उनकी बेटी का इंतकाल हो गया, तो उस शख्स को भी नबी वसल्लम ने माफ कर दिए। इस तरह से
जो 9 लोगों में से समझो न 4 को ही कत्ल किया गया था, बाकी को कितने लोगों को माफ़ी दे दी गई। फिर यहाँ पर फिर जो है और भी जो बड़े-बड़े कुछ लीडर्स थे, सफ़वान बिन उमैया और फुदैल बिन उमर, ये भी सारे लोग जिन्होंने क्या किए थे, नबी वसल्लम को खत्म करने की कोशिश किए थे, उनको भी नबी वसल्लम ने क्या कर दिए, माफ़ कर दिए और उन उन लोग को भी उन लोग ने भी क्या कर लिए, इस्लाम कबूल कर लिया। तो फिर इसके बाद जो दूसरा दिन था, तो दूसरे दिन है ना, नबी वसल्लम ने क्या किए, वहाँ पे वापस से खड़े हुए और सारे लोगों को वापस से ना बातें बोले। और नबी वसल्लम ने फिर वहाँ पे सबसे पहले अल्लाह की हम्द सना किए और फिर वहाँ पे लोगों को बोले कि जो मक्का जो है वो कैसी है, हुर्मत वाली जगह है और वो आखिरत के दिन तक ता कयामत तक ये कैसी होएगी, हुर्मत वाली ही जगह रहेगी। यहाँ पे ना किसी को भी खून करने का, किसी को भी एक-दूसरे का कत्ल करने का, किसी को भी है ना इजाज़त नहीं है। और कोई ये मिसाल दे कि मैंने यहाँ पे मुझे इजाज़त दी गई थी, तो वो ये बात ख़्याल रखे कि मुझे भी है ना ये हुर्मत इसको ये शहर को हलाल कर दिया गया था, कुछ ही थोड़े ही वक़्त के लिए मेरे पे ये हुआ था और ये जो था शर सिर्फ़ मुझे अता किया गया है और किसी को भी नहीं। तो ये सिर्फ़ मेरे लिए थोड़े वक़्त के लिए, थोड़ी देर के लिए हलाल कर दिया गया था, वरना ये कैसी जगह है, ये हुर्मत वाली जगह है। तो इस जगह पे है ना किसी को भी है ना कोई भी ना झाड़ काट सकता है और ना ही कोई ज़मीन में से कोई भी पौधे उखाड़ सकता है और नहीं यहाँ पे कोई शिकार कर सकता है और ना ही यहाँ पे कोई भी है ना कोई किसी की भी अगर चीज़ नीचे गिर गई है, तो उसको भी नहीं उठा सकता है। तो फिर जब ये सारी चीज़ यहाँ पे मिशन मना कर दी गई, यहाँ पे कोई भी ना झाड़ को भी नहीं काट सकते, कोई भी है ना जड़ से किसी पौधे को भी नहीं हटा सकते, शिकार भी नहीं खेल सकते, एक-दूसरे का कत्ल भी नहीं कर सकते, नीचे से गिरी हुई कोई चीज़ को भी नहीं उठा सकते। तो लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह उन्होंने बोले कि यहाँ पे जो लेमन ग्रास एक छोटा-सा ये पौधा होता है, वो है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? हमारे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों के लिए और ज़ेवर बनाने के लिए, तो वो हम लोग उठा सकते हैं क्या? वो निकाल सकते हैं क्या? तो उसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कि अच्छा, जो लेमन ग्रास का जो छोटा-सा पौधा है, उसको तुम लोग उखाड़ सकते हैं, बाकी किसी भी दूसरे पौधे को नहीं उखाड़ा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ये सब नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से नबी वसल्लम ने दूसरे दिन वहाँ के सारे लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी। अब ये सब हो जाने के बाद जो जितने भी ये लोग थे, जो यहाँ पे अभी अंसार लोग थे, अब अंसार लोग क्या करने लगे, बातें करने लगे। अब उन लोगों को क्या ऐसा लगने लगा कि नबी वसल्लम तो वापिस से अपने शहर में आ गए हैं, वापिस से अपने घर में आ गए हैं, तो क्या वो वापिस से हमारे साथ आ जाएँगे कि वो मक्का में ही रह जाएँगे? ये सब जो थी, ये अंसार के दिलों में ये सारी बातें उठने लगी कि अब नबी वसल्लम को देखो खाने काबा से निकाला गया था और लेकिन आज क्या हो गया, आज नबी वसल्लम वापस फातेह बन के यहाँ पे आ गए, तो अभी उनकी मर्ज़ी ना, अभी इस शहर में तो वो चाहे तो अब वो वापस से रह सकते। अगर वो मक्का में रह जाएँगे तो मदीना वालों को छोड़ देंगे, मक्का में ही रह जाएँगे। तो ये सारे लोगों के दिलों में ये बात आने लगी थी कि अब नबी वसल्लम आगे क्या करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यहाँ तक के सबक ही रखेंगे। इसके आगे फिर क्या हुआ वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे। तो मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सल्लामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।